Assalamu alaikum and good morning, students. Welcome to Forward Public School e-learning class 3. I am your general science teacher and my name is Shazia Umar. Chapter 2, Tools and Machines. Part 3, Book Exercises and Written Work. Students, open your book at page 64. Hold your pencil in your hands for book exercises. Exercise D, encircle the tools used by a student. You have given different pictures. As you can see, you have to circle that picture that you are using as a students. यानी आपने उन pictures को circle करना है जो आप as a students जो है वो स्कूल में यूज़ करते हैं. क्रियॉन्स आप यूज़ करते हैं तो इसको आपने सर्कल करना है. इरेज़र भी आप यूज़ करते हैं, इसको भी आपने सर्कल करना है. पेंसिल भी आप यूज़ करते हैं, इसको भी आपने सर्कल करना है. इंजेक्शन आप यूज़ नहीं करते, इसीलिए आपने इसको सर्कल नहीं करना. द लास्ट वन इज़ शॉर्पनर. शॉर्पनर भी आप स्कूल में यूज़ करते हैं, इसको भी आपने सर्कल करना है. Now exercise E, tick the tools that your mother uses at home. You have given different pictures. As you can see, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो पिक्चर दी गई है. आपने उन पिक्चर को टिक करना है जो आपकी मदर यानी आपकी माँ जो है घर में यूज़ करती है. माउस जो है वो यूज़ नहीं करती, प्रेशर कुकर जो है वो किचन में जो है वो यूज़ करती है, तो आपने इसको टिक करना है. बाउल जो है वो भी यूज़ करती है किचन में, तो आपने इसको टिक करना है. ग्लास भी जो है घर में यूज़ होता है, आपकी मदर और आप जो है उसको यूज़ करते हैं, तो इसको भी आपने टिक करना है. नाउ स्टूडेंट, कम टू रिटन वर्क. राइट द डेट एंड सीरियल नंबर ऑन योर नीट कॉपीज. Write Unit 1 in the first line, then write Tools and Machines. Give the heading of contents. First one is Words Meanings 6. Fill in the second one is Filling the blanks 5. Third one is True False 5. Fourth one is Separate the vehicles moved by humans and animals 5. The fifth one is Choose the correct option 8. Sixth one is Short question answer 5. Seventh one is Long question answer 4. Eighth one is activity D and E on page 64 on book. Ninth one is diagrams 2. First one is spade and second one is hammer. After writing all the contents, draw the finishing line at the end. Now student, come to next page. Write the serial number and date. Then write unit 2 in the first line. Then write tools and machine here. Draw the central line. Write words here and meanings here. The first one is tools. आलात. Second one is digging, खुदाई. Third one is hunting, शिकार करना. Fourth one is sharp, तेज. Fifth one is easier, आसान. Sixth one is lifting, ऊपर उठाना. After writing the words meanings, draw the finishing line at the end. Students, come to next page, write the date and serial number, then give the heading of filling the blanks. The first one is human beings use different tools to make their work easier. Easier is blank here, so underline it. The second one is a plow was made up of wooden frame with an attached iron blade. Iron blade is blank here, so underline it. The third one is when we walk on the ground, we push the ground in backward direction. As a result, we go forward. Forward is the blank here, so underline it. The fourth one is force is applied on pulley in downward direction and the load is lifted. Lifted is blank here, so underline it. The fifth one is modern machines consist of simple machines which works together. Simple machines is blank here, so underline it. After writing the blanks, draw the finishing line at the end. Now student, come to next page, write the serial number and date, then give the heading of true false. The first one is a hammer is used for making different objects from carbon, false. Second one is plow was used in farming for cultivation of crops, true. Third one is postcard is a modern way of communication, false. Fourth one is bike is a vehicle moved by an animal, false. Fifth one is lever consists of a wheel and axle,
false. After writing the true false, draw the finishing line at the end. Students, come to next page, write the serial number and date, then give the heading of separate the vehicle moved by humans and animals. Then write bike, tonga, car, bus, bullock, cart in the second line. Then draw the finishing line, write humans here and animals here. The first one is bike, second one is bus, third one is car. All these vehicle are moved by humans. ये तमाम की तमाम जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बाइक, बस और कार जो है, इसको इंसान जो है वो चलाते हैं और इसमें मशीन जो है वो यूज़ होती है. Animals, first one is tonga and second one is bullock cart. ये वाली व्हीकल जो है इसको जानवर जो है वो चलाते हैं और इसमें कोई मशीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होती. After writing this activity and this exercise, draw the finishing line at the end. Students, come to next page, write the serial number and date, then give the heading of choose the correct option. Write the first one, that is the tool used in the past for digging land was, यानी पुराने ज़माने में ज़मीन को खोदने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता था. फर्स्ट वन इज स्पेड यानी ए, द बी इज़ ट्रैक्टर एंड सी इज़ हैमर. आपने ये ऑप्शंस इसी तरह लिखने हैं जिस तरह आपको ये दिखाई दे रहे हैं. इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, ए को आपने टिक करना है, विच इज़ स्पेड यानी बेलचा. सेकेंड वन इज़ द टूल्स यूज फॉर हंटिंग इन द पास्ट वर. शिकार करने के लिए पुराने ज़माने में कौन से आलात इस्तेमाल होते थे. ए गन्स, बी सोर्ड्स, सी बोज एंड एरोस. इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है यानी तीर और कमान. थर्ड वन इज़ द टूल विच वॉज यूज इन टोंगा एंड आल्सो यूज इन कार इज़. वो कौन सा आला है जो पहले टोंगा में भी जो है वो इस्तेमाल होता था और अब भी जो है वो कार में इस्तेमाल होता है. ए इज़ व्हील, बी इज़ प्लायर्स एंड सी इज़ हैमर. ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, विच इज़ व्हील यानी पहिया. फोर्थ वन इज़ द टूल विच इज़ यूज टू कट क्लॉथ इज़. वो कौन सा आला है जिसकी मदद से हम कपड़े काटते हैं. ए इज़ प्लायर्स, बी इज़ सीजर्स एंड सी इज़ स्पेड. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी सीजर्स यानी कैंची. बी को आपने टिक करना है. फिफ्थ वन इज़ द सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रॉड इज़. वो कौन सी सादा मशीन है जिसमें सिर्फ सिंपल जो है वो एक ही जो है वो सादा रॉड होती है. ए इज़ पुली, बी इज़ लीवर एंड सी इज़ प्लायर्स. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टिक करें इसको, दैट इज़ लीवर. सिक्स वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मशीन अ वुड कटर यूजेस टू कट वुड. वुड कटर जो है वो लकड़ी काटने के लिए कौन से सादा मशीन का इस्तेमाल करता है. ए इज़ एक्स, बी इज़ हैमर, सी इज़ सीजर. करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, एक्स यानी आरी का इस्तेमाल करता है. सेवन्थ वन इज़ विच टाइप ऑफ मशीन अ लीवर इज़. लीवर जो है किस किस्म की मशीन होती है. ए इज़ सिंपल, बी इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड सी इज़ बिग. करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, सिंपल यानी सादा मशीन होती है. द एट वन इज़ अ स्वीपर स्वीप्स विद द हेल्प ऑफ आ. एक स्वीपर जो है ये किस चीज़ की मदद से जो है वो सफाई करता है. ए इज़ सॉ, बी इज़ एक्स एंड सी इज़ ब्रूम. यानी वो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, आपने इसको टिक करना है. झाड़ू की मदद से जो है वो सफाई करता है. आफ्टर राइटिंग चूज द करेक्ट ऑप्शन, ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन एट द एंड. Okay student, come to next page, write the serial number and date, then give the heading of short question answer. Question number 1 is why people use tools and machine. लोग जो है वो आलात और मशीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं. आंसर इज़ पीपल यूज़ टूल्स एंड मशीन टू मेक वर्क ईजियर. यानी लोग जो है आलात और मशीनों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो अपने काम को आसान बना सके. आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन, देन राइट क्वेश्चन नंबर 2, What kind of machine were used in the past? पुराने ज़माने में किस किस्म की मशीनें इस्तेमाल होती थी. Answer is wheel, spade, bow and arrow are the machine that were used in the past. पुराने ज़माने में पहिए का, बेलचे का और तीर और कमान का जो है वो इस्तेमाल
होता था। After writing question number 2, draw the finishing line at the end. Now come to question number 3. What kind of tools are used in the modern world? आजकल जदीद दौर में कौन से आलात इस्तेमाल होते हैं? आंसर इज हैमर, सीजर्स एंड प्लायर्स आर द टूल यूज्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आजकल के जदीद दौर में हम हथौड़े का, कैंची का और प्लास का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन एट द एंड। Okay student, come to next page, write the serial number and date, then write question number 4. What is a simple machine? सादा मशीन क्या होती है? आंसर इज फर्स्ट वन इज सिंपल मशीन इज़ अ थिंग विच कैन मेक आवर वर्क ईजियर, यानी सादा मशीन वो चीज़ होती है जो हमारे काम को आसान बनाती है। सेकेंड वन इज इट कैन बी सिंपल रॉड, डिस्क और कम्बिनेशन ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट। ये मशीन जो है वो सादा रॉड भी हो सकती है, डिस्क या सादा चीज़ों का मजमुआ भी हो सकती है। After writing question number 4, draw the finishing line at the end. Okay student, write question number 5, that is what is force? ताकत क्या होती है? आंसर इज force is a push और pull। ताकत जो है push और pull को कहते हैं। It is the action that can change the shape, size and position of an object. ये एक ऐसा एक्शन यानी अमल होता है जिसकी वजह से किसी भी चीज़ की शेप, उसकी शक्ल, साइज, उसकी जिसामत और पोजीशन, उसका रुख जो है वो तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अ डोर यानी दरवाजे को धकेलना, एंड पुलिंग अ विंडो या खिड़की को जो है वो खींचना। आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन एट द एंड। Now students, come to next page, write the serial number and date, then give the heading of long question answer. The first one is how many types of simple machines are there, name them. कितनी किस्म की सादा मशीनें जो है वो इस्तेमाल होते हैं, उनके नाम बताएं। आंसर इज देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। 6 किस्म की सादा मशीनें जो है वो इस्तेमाल होती है। द फर्स्ट वन इज इंक्लाइन प्लेन, सेकेंड वन इज वेज, थर्ड वन इज स्क्रू, फोर्थ वन इज पुली, फिफ्थ वन इज व्हील एंड एक्सेल एंड सिक्स्थ वन इज लीवर। आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन एट द एंड। राइट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू प्लॉ एंड प्लायर्स हेल्प अस इन डेली लाइफ। हमारी रोज़माना ज़िंदगी में हल और प्लास हमें कैसे मदद देती है? आंसर इज प्लॉ, हल चलाना। प्लॉ वर यूज्ड इन फार्मिंग फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। पुराने ज़माने में हल का इस्तेमाल खेती बाड़ी में फसलों की काश्त के लिए किया जाता था। प्लायर्स, प्लास, फर्स्ट वन इज प्लायर्स आर हैंड टूल्स यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स फर्मली। प्लास जो होते हैं ये हाथ वाले आलात होते हैं जिसकी मदद से जो है हम चीज़ों को मजबूती से पकड़ सकते हैं। सेकेंड वन इज़ प्लायर्स आर मोस्टली यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिक्स। और प्लास जो है वो ज़्यादातर जो है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिशियन लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन एट द एंड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई स्पेड वॉज यूज्ड एज अ टूल इन द पास्ट। पुराने ज़माने में बेलचे को एक आले के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता था? आंसर इज फर्स्ट वन इज अ स्पेड वॉज यूज एज अ टूल फॉर डिगिंग एंड रिमूविंग सॉइल इन द पास्ट। बेलचे को एक आले के तौर पे पुराने ज़माने में मट्टी को हटाने के लिए और खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड वन इज द स्पेड हैज़ अ वुडन लॉन्ग हैंडल एंड अ लार्ज आयरन ब्लेड। बेलचे का जो है वो लंबा लकड़ी का हैंडल होता है, इसके अलावा लोहे का जो है एक बड़ा ब्लेड होता है। आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन एट द एंड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू हैमर हेल्प अस इन डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हथौड़ा हमारी मदद कैसे करता है? फर्स्ट वन इज़ हैमर हैज़ अ स्मॉल वुडन हैंडल एंड हैवी आयरन हेड। हथौड़े का जो है वो छोटा सा लकड़ी का हैंडल होता है और इसके ऊपर जो है लोहे का एक भारी सर होता है। सेकेंड वन इज इट ड्राइव्स फोर्स टू हैंग और इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स इजीली। इसके अलावा कुव्वत लगा के हम यानी कुव्वत का इस्तेमाल करके हम हथौड़े की मदद से मुख्तलिफ़ चीज़ें यानी जैसे कि कील वगैरह हो गई हम उसको दीवार में ठोंक सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है उससे लटका सकते हैं। आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन एट द एंड। Okay students, come to next page, write the serial number and date, then write diagram, draw spade and hammer and color it. Give the heading of spade, then
draw the spade like this as you can see in this picture। बेलचे को आपने इसी तरह बनाना है जिस तरह आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसके अलावा जो है ये this picture is also given in your book on page 54। वहाँ से भी आप इसको देख के जो है इसकी कलरिंग कर सकते हैं। The second one is hammer। As you can see in this picture, you have to draw it like this, neat, and you have to color it। This diagram is also given in the book on page 55। Dear students, this is the end of chapter 2। Hope you have understood this chapter। Thank you and Allah Hafiz। Stay home, stay safe।